Good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do question answers in exercise of chapter 5 Jhalkari of your book Communicate with Cambridge. Let's start with exercise A given on page number 61. Choose the right options to complete these sentences. Work in pairs. First check your own answers, then check your partner's answers. Here one statement is given and 4 options are given. एक statement है और 4 options है. आपको सही option पर टिक करना है. Let's do it. First one is people liked Jhalkari because the correct answer is option A. She worked hard in a cheerful way. Number 2, Jhalkari had fought the leopard and the correct option is D, with just a thick stick. Number 3, the British entered the fort through and the correct option is B, a gap in the outer walls. Next we are going to do exercise B. Here one statement is quoted from the chapter and based on that statement few questions are asked. उस statement के base पे कुछ questions पूछे गए हैं. आपको उनका आंसर चैप्टर के बेस पर ही देना है. So let's read the first quotation. She shall be my companion. उसे तो मेरा साथी होना चाहिए. अब क्वेश्चन नंबर ए है Who said this? ये किसने कहा? आंसर इज द रानी ऑफ झांसी said this. ये झांसी की रानी ने कहा. क्वेश्चन नंबर बी Who would be the companion? किसको साथी होना चाहिए? एंड द आंसर इज झलकारी would be the companion. झलकारी को साथी होना चाहिए. Question number C. Where did the speaker meet the person who is being spoken about? जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है उससे जो स्पीकर है जिसने इस सेंटेंस को कहा वो कहाँ मिला? आंसर इज द रानी हैड द चांस टू सी झलकारी इन झांसी वन डे. रानी को झलकारी को देखने का मौका एक दिन झांसी में मिला. सेकेंड कोटेशन इज Call Dulaji at once. दूलाजी को तुरंत बुलाओ. He ordered his soldiers. उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया. दूलाजी will know. दूलाजी जान जाएंगे. Now this is quotation from the chapter. Based on this, question number A is Who was the speaker of these lines? इन lines को किसने बोला था? आंसर इज द ब्रिटिश कमांडर. इन lines को ब्रिटिश कमांडर ने बोला था. क्वेश्चन नंबर बी हु वॉज दूलाजी? दूलाजी कौन था? आंसर इज अ गनर हु बिट्रेड झांसी. दूलाजी एक गनर था, बंदूकधारी था जिसने झांसी के साथ विश्वासघात किया था. क्वेश्चन नंबर सी व्हाई वुड दूलाजी नो व्हाट द स्पीकर वॉज टॉकिंग अबाउट? दूलाजी क्या जान जाएंगे स्पीकर किसके बारे में बात कर रहा था? आंसर इज Dulaji could recognize the queen as well as Jhalkari by looking at them. दूलाजी रानी को पहचान जाएंगे और साथ ही साथ झलकारी को भी पहचान जाएंगे उनकी तरफ देखकर. Third quotation from the chapter is Do you think it is so easy to capture the Rani? तुम्हें क्या लगता है कि रानी को पकड़ना इतना आसान है? Now question is Who said this to whom? ये किसने और किससे कहा? आंसर इज दूलाजी said this to the British commander. ये दूलाजी ने ब्रिटिश कमांडर से कहा. क्वेश्चन नंबर बी Who had been captured? किसको पकड़ लिया गया था? आंसर इज झलकारी had been captured. झलकारी को पकड़ लिया गया था. क्वेश्चन नंबर सी What did the speaker mean by this question? इस प्रश्न से स्पीकर का क्या मतलब है कि रानी को पकड़ना इतना आसान है क्या? आंसर इज he meant that it was not easy to capture Rani Lakshmi Bai of Jhansi and the British had been tricked into believing that they had captured the queen when it was Jhalkari dressed as the Rani of Jhansi whom they had captured. इस प्रश्न से उनका मतलब था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ना इतना आसान नहीं है कि जबकि ब्रिटिश को धोखा दिया था क्वीन के कपड़े पहन करके झलकारी ने
और वो कंफ्यूज हो गए कि ये ही रानी है और उन्होंने रानी की जगह झलकारी को पकड़ लिया। तो इसीलिए जब झलकारी ने उन्हें धोखा दे दिया तो इसका मतलब रानी को पकड़ना इतना आसान नहीं है। Quotation number 4 from the chapter is beware you will never conquer us. सावधान, तुम हमें कभी जीत नहीं सकोगे। We'll rise again and again and fight back until we win our freedom. हम बार बार उठेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें आजादी नहीं मिल जाती, हम अपनी आजादी को नहीं जीत लेते। So this is the quotation from the chapter. Based on this, question number A is Who said this? ये किसने कहा? आंसर इज झलकारी said this. ये झलकारी ने कहा। क्वेश्चन नंबर बी, हु वॉज द स्पीकर टॉकिंग टू? यहाँ पर स्पीकर यानी झलकारी किससे बात कर रहा है? आंसर इज द स्पीकर वॉज टॉकिंग टू द ब्रिटिश सोल्जर्स who had captured her. स्पीकर यहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर्स अंग्रेजी सैनिकों से बात कर रहा है जिन्होंने उसे पकड़ लिया था। क्वेश्चन नंबर सी, डिड द स्पीकर विन द फ्रीडम दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट? क्या स्पीकर को वो आजादी मिली जिसके बारे में वो बात कर रहा था? आंसर इज नो, शी वॉज हैंग्ड टू डेथ इन 1858. नहीं, उसे 1858 में फांसी पर चढ़ा दिया गया। ऑलमोस्ट 90 years बिफोर इंडिया वन इट्स इंडिपेंडेंस। भारत के आजाद होने से लगभग 90 साल पहले उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया, फांसी की सजा दे दी गई। Next we are going to do exercise C, think and answer. Question number 1 is Jhalkari was very loyal to her Rani. How do you know that this was true? झलकारी अपनी रानी के प्रति बहुत वफादार थी। आप ये कैसे जानते हैं कि ये सही है? आंसर इज झलकारी वॉज लॉयल टू द रानी, शी फॉट द ब्रिटिश ब्रेवली। झलकारी रानी के प्रति वफादार थी, उसने अंग्रेजों से बहादुरी से मुकाबला किया। When Rani Lakshmibai had to leave the fort of Jhansi, she escorted her but returned to Jhansi to continue the fight. जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अपना किला छोड़ना पड़ा तो वो उनके साथ गई, लेकिन वो वापस आ गई युद्ध को जारी रखने के लिए। She dressed herself as the Rani and was arrested. उसने खुद रानी की पोशाक पहनी और गिरफ्तार हो गई। फाइनली शी वॉज हैंग्ड टू डेथ, और अंत में उसे फांसी पर लटका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ वॉज दूलाजी डिफरेंट फ्रॉम झलकारी? दूलाजी झलकारी से कैसे अलग थे, भिन्न थे? आंसर इज झलकारी वॉज एक्सट्रीमली लॉयल टू हर क्वीन एंड हर कंट्री। झलकारी अपनी रानी और अपने देश के प्रति एकदम वफादार थी। बट दूलाजी वॉज अ ट्रेटर, लेकिन दूलाजी गद्दार थे। ट्रेटर मतलब होता है गद्दार। He was bribed by the British and showed them the weak spot in the fort's wall from where the British army could enter the fort. उनको ब्रिटिश द्वारा रिश्वत दी गई, दूलाजी को रिश्वत दी गई अंग्रेजों द्वारा, और जिसकी वजह से उन्होंने किले में जो कमजोर जगह थी, दीवार में जो दरार वाला हिस्सा था, वो उन्होंने बता दिया, जहां से ब्रिटिश आर्मी, अंग्रेजी सेना किले के अंदर प्रवेश कर गई। तो इसलिए वो गद्दार थे, उन्होंने अपने ही देश को धोखा दिया। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द chapter and we have completed question answers of this chapter. I hope you have understood. If you like the video, then don't forget to press on like, comment, share and subscribe. See you soon. Till then, bye bye. Have a good day.